तो इन हैंड आपकी कितनी इनकम है? So every month I get 84,900 7 सालों में आपके करीब 4x इनकम somewhere. Yes, correct. So I have a personal loan going on. Another loan which I took for a air conditioner that I purchased. Apart from this, I went on a vacation and I spent my credit card there for the flight bookings and everything. आपके रेंट के खर्चे नहीं है, आपके ग्रोसरी के खर्चे नहीं है। Correct. आपको 30-35 हज़ार रुपए को EMI में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? I'm planning to buy a MacBook. Okay. आप 80,000 कमाते हो, Yes. ठीक है? आपके हाथ में 50,000 का वॉच है, Yes. राइट? आपके हाथ में नॉर्मल आईफोन नहीं है, आपके Yes. पास प्लस वाला आईफोन Yes. जो आपकी 1 महीने की सैलरी से ज्यादा है। Correct. Yes. ये सारे खर्चे डाले बिना भी हाँ। आपका जो एक्सपेंस था सितंबर का Yes. वो है 80,888 which is more than your salary of 80,000। Yes, that's correct. दोस्तों, फिक्स योर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ फरीदाबाद हरियाणा में और मेरे साथ है 32 वर्षीय करण की आज कहानी को समझेंगे एंड मैं इनके फाइनेंसेस को फिक्स करने की कोशिश करूंगा। करण जी, वेलकम टू फिक्स योर फाइनेंस। कैसे हो आप? I'm good. What about you? ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू फरीदाबाद। It's a pleasure. 1.5-2 घंटे लगे, मेरे लिए इतना प्लेजर नहीं था बट आपसे बात करके आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू। करण जी, बताइए अपने बारे में, आपकी उम्र क्या है, क्या करते हो, कैसे रहते हो? Okay, so as you know, my age is 32 and my name is Karan and I'm currently working as a software QA, software test engineer and in an IT company. I have recently become a father. Congratulations. Thank you so much. And he's 7 months old now. So I'm looking forward to doing something good with my money instead of, what the time I've spent on, kind of doing all the extraordinary expenses that I've done. I don't want to now miscalculate. I want to judge everything, calculate everything and just put it into a single picture कि this will give me the best return possible without the risk. करण जी, बताइए घर में कौन कौन है अभी? So we are 5 members now, as I told you. Earlier we were 4. So 7 months old baby now and the new addition to the family and my father, mother, both are retired and just, enjoying their life. Apart from this, my wife and the last member is me. ये जो घर है, क्या ये घर का जो रेंट है या फिर जो लोन है वो आप लोग पे करते हो कि ये पेरेंट्स का घर है? Hey, this is our own parental owned property. All the 3 floors. This is ours. So there's nothing else except the part we have to just pay the electricity bills and household things and that's it. ठीक है। ये बच्चे के पहले, Yes. ठीक है, क्या आप बहुत ज्यादा फ्री रहते थे? मतलब Yes. क्या आपके खर्चे बहुत ज्यादा Not बच्चे के पहले, I would say शादी से पहले I was very free in terms of I used to spend on anything that I want. Okay. And I was not saving a lot for obvious reasons. But I think marriage changed me a lot. ठीक है, शादी के पहले आपके खर्चे कैसे दिखते थे? क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थे कि मम्मी पापा ही मेजर खर्चे निकाल देते थे? हाँ, majority of the part, yes. So starting, I think 1 year, I was just the king of the world. I was working in Gurgaon during that time. And there was no corona, just to add to the point. Yes. There was no corona, so the life was Cyber City, Gurgaon, partying and everything and doing all that stuff. Yes. So that changed after corona and, along with corona, the marriage happened, then the baby happened. So it all, kind of came into one single line now. Got it's in it. the single pipeline. Got it. Karan, what is your current compensation? I'm currently taking in 11 lakhs per annum. Okay. And this is excluding the bonuses that I get from the company based on performance. So bonus would be around, I would say, 1 to 1.2 lakhs annually. And आप इस कंपनी में कितने टाइम से हो? In the month of May, I've completed 4 years here. तो इन हैंड आपकी कितनी इनकम है? 80,000-90,000? So every month I get 84,900 in my account. Okay. As the salary part. 4 साल पहले कितनी थी इस कंपनी में income? I started with, I think, 55K per month. ठीक है, तो आपका हर साल 20% जितना ग्रोथ हो रहा है। Somewhere near about, yes. ठीक है। 15 to 20. एंड कब से आपने काम करना शुरू किया है? I started working from 2018. 18 में आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? 25K per month. 7 सालों में आपके करीब 4x इनकम। Somewhere, yes, correct. ठीक है, इस कंपनी में क्या क्या बेनिफिट्स और पर्क्स है? They've given me the medical insurance from the company. इसका कवर कितना है? It's 3.5 lakhs from starting from this year, where my baby is also covered in this medical insurance. So we have 3 people covered in the under 3.5 lakhs. Yeah. बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो 3 लाख 4 लाख से ज्यादा लगते हैं, राइट? इसीलिए आज के दिन इंडिया में टियर 1 सिटी में तो 3.5 लाख एक बहुत कम छोटा कवर है, राइट? ये अच्छी बात है कि आपका कंपनी का जो ग्रुप प्लान है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बट द प्रॉब्लम इज कवर।
कवर काफी कम है, Got राइट? it. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप अगर अलग से 7.5 लाख या 8 लाख का कवर ले लीजिए, क्योंकि यार टीयर 1 सिटी में 10 लाख कवर के बिना तो 3 लोगों को नहीं रहना चाहिए, Okay. राइट? कुछ भी अगर मेजर या कुछ भी हो जाए, गॉड फॉरबिड, Right. इतना अमाउंट जा सकता है, राइट? तो मैंने ठीक है। आप लोगों के लिए फिक्स योर इंश्योरेंस से कोट्स निकाल लिए, Okay. राइट? तो अगर आप 5 लाख रुपए का HDFC, टाटा या ICICI का हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो वो करीब 11 या 12 हज़ार रुपए पर ईयर होगा, Okay. ठीक है? और अगर आप 10 लाख का इंश्योरेंस लेते हो, 10 लाख कवर का, विच मीन्स योर कवर विल देन बी 10 + 3.5, Okay. तो उसका प्रीमियम बनता है करीब 19 से 18 हज़ार रुपए पर ईयर. सो दैट Correct. इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट Okay. एज कंपेयर टू द कवर दैट यू आर गेटिंग. And whatever you are saying, this includes husband, wife, and the baby. यस, तीनों के लिए मैंने ठीक आप है। तीनों के डिटेल्स डाल दिए थे हमारी टीम ने फिक्स योर इंश्योरेंस के पोर्टल Great. में, और फिर हमें हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी के कोट्स मिल गए. अगर आपके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या फिर अगर आपका जो कॉर्पोरेट प्लान है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, या फिर अगर आपको दिखता नहीं है कि आप इस कंपनी में पूरी जिंदगी रहोगे, तो फिर आपको भी एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए. इफ़ यू वांट अ रिव्यू ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्लान, और इफ़ यू आर प्लानिंग टू लुक फॉर न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, आप एक 30 मिनट का फ्री कंसल्टेशन कॉल ले सकते हो फिक्स योर इंश्योरेंस के ट्रस्टेड इंश्योरेंस एक्सपर्ट के साथ. ठीक है करण, लेट्स हैव अ लुक एट योर एक्सपेंसेस. ठीक है, एक एक करके आप बताइए आपके क्या क्या खर्चे हैं. So I would say major part of a grocery, daily basis वाला राशन जो होता है घर में. So my father is handling all those things for now being. So I spend on grocery part, being on the chips and everything. जो सब basic चलता है. Other than the राशन वाला part, I handle those. So that's near about like 2 to 3K every month. Okay. Next is petrol, 2,000 rupees. Yeah, this consists of I have at this point 2 motorcycles, 1 car, and 1 scooty. Okay. So including everything, that's near about 1,500 to 2,000 petrol. 4 लोगों के बीच आपके पास 3 बाइक्स है, 2 bikes. 2 बाइक्स और एक स्कूटर. Yes. ओके. Yes. एंड क्या वो सारी चीजें आप ही यूज करते हो कि आपके पेरेंट्स? नहीं, one is for my father, the other one is for me, and the scooty was for my wife. एक मुझे खर्चा दिख रहा है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, which is 21,000. Is this a typo or is this legit? No, this actually where I live, the electricity bill is for 60 days. So for every 2 months, the electricity bill is generated. Since it's a 3-floor building, and I have a tenant living in the on the ground floor, so we have separate ACs, refrigerators, and everything. Everything is running, geysers and everything. नेक्स्ट खर्चा है मेडिकल, वो है 5,000 रुपए. Yes, this is the part where I have kind of added it new this year, which is the vaccines and all those stuff that I need for the baby, and for somehow for my wife or me or my father and mother. ठीक है, तो ये जो मंथ है सितंबर, पिछला जो मंथ है, उसमें लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स को हटा के आपके टोटल खर्चे हो रहे हैं 50,000. Yes, राइट? correct. लोन्स चल रहे हैं आपके कोई? Yes, I have a personal loan going on. Okay. And it was for around I think 6 lakhs. Okay. And it's the remaining amount is around I would say 3.9 or 4 lakhs something. And the EMI for that is 16,000 every month. एंड इसका क्या पर्पस था और कब लिया था आपने? I took this loan for my sister's marriage, and that was only purpose. Yeah. तो ये 16,000 आपका पर्सनल लोन फॉर मैरिज हो गया. Yes. और इसके अलावा आपके कोई और लोन्स हैं? Yes. So there's another loan which I took for a air conditioner that I purchased for the floor downstairs. So I think it's around 3,000 per month. ठीक है, और कोई लोन्स? Apart from this, I went on a vacation and I spent my credit card there for the flight bookings and everything. So I was given an option to convert it into the EMIs, and I think I converted it for 6 months. So I think around 7,000 or 8,000 something last EMI is left for that particular credit card. Apart from that, it will be done. अमाउंट कितना था जो आपने कन्वर्ट किया था? It was around I think 38,000. 38,000. And after the EMI conversion, I had to pay around 41,800 something. तो on the क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स को जब आप EMI में कन्वर्ट करते हो तो आपको Yes. उसका इंटरेस्ट होता है करीब 1.5% पर मंथ. Yes. 1.5% पर मंथ, तो 6 महीने में आपने करीब 10% एक्स्ट्रा दे दिया. Yes, that's correct. आप एक चीज बताओ, 80,000 रुपए कमाते हो, Yes, आपके रेंट के खर्चे नहीं है, आपके ग्रोसरी के खर्चे नहीं है, correct. आपको 30-35,000 रुपए को EMI में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? Okay, so the reason was I knew there was some extra खर्चा जो मेरे पास आने वाला था in those 6 months. I converted it for 6 months actually. So I knew कि second और third month में
I will be getting those additional since I've calculated these things. तो इसीलिए मैंने वो at those point of time I thought कि थोड़ा सा extra दे दूंगा मैं उस अमाउंट को, being from 38 to 42. I thought कि वो extra चल जाएगा, but वो जो 2-3 महीने मेरे बीच में in extra spend जाएंगे वो manage हो जाएंगे. So I kind of somehow managed those months, but yeah, I had to pay the extra. This was the best option I could think of. तो ये 3 लोन्स को मिला के आपकी टोटल EMI आज के दिन है करीब 26-27 हजार रुपए. Yes. ठीक है, तो ये 26-27 हजार रुपए को अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो आपके खर्चे बनते हैं करीब 76-77,000 रुपीज. Yes. इन सितंबर लास्ट मंथ. Yes. ठीक है, आपकी इनकम है 80,000 रुपए. Yes. तो मोटा For मोटी this आपके month, yes, सारे I'm kind of on the lower part. Yes. ठीक है. क्या ये हर महीने ही ऐसा होता है? नहीं, this is only for the month I'm specifically talking about, September. There are few months where I kind of save a lot of money up to like 40 to 45,000 a month. There are good months in a year. So this is not same for every month. Yes. ठीक है. सो क्या आप बता सकते हो कि 2025 में अभी 9 महीने खत्म हो चुके हैं, आपने कितना सेव किया या इन्वेस्ट किया है? I've started investing in stable money, somewhere around 50,000 from my wife's account, obviously just to stay out of the tax slab zone. So 50,000 is invested there for Fixed 1.5 years. Yes, that's a fixed deposit. And apart from that, I have in my savings account, I think 1.8 lakhs, just for the emergency cash that कभी भी जरूरत पड़ती है, I can just quickly go for it. And वो मेरे पास अमाउंट रहता है हमेशा. ठीक है, तो Yes. क्या ये आप खर्च करते हो कि आपकी वाइफ? नहीं, this is solely for the purpose of just putting it in the account. ये मैं इन्वेस्ट भी नहीं करता हूँ, which is the reason I kind of need the guidance from you कि एटलीस्ट मैं इसे इन्वेस्ट करके भी कुछ प्रॉफिट कमा सकूं. फॉर द रिस्क ऑफ इट, फॉर द फियर ऑफ इट, आई डोंट इवन इन्वेस्टेड कि कहीं ये मेरा नेगेटिव में ना चला जाए जो मेरा जितना पड़ा हुआ है. सो दिस इज व्हाई आई जस्ट डोंट टच इट. इमरजेंसी फंड का पर्पस ये नहीं है कि वो आपके लिए पैसा बनाए. इमरजेंसी फंड का पर्पस ये है कि कल जाके अगर आपको कोई इमरजेंसी या फिर कोई अनफोर्सीन खर्चा आ गया, Yes. आपको अपना FD नहीं बेचना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड ना बेचना करेक्ट. आई जस्ट हैव टू स्वाइप माय कार्ड और मैं कैश निकाल के Yes. आई कैन डू दिस. यस. तो उसमें रिटर्न कमाने के लिए ऑप्टिमाइज करना ही नहीं चाहिए. वो आप दूसरे बैंक अकाउंट में रखो और उसको रहने दो. Even though that same amount could fetch me, something in the risky market or much better. नहीं, इमरजेंसी फंड का पर्पस ही नहीं. ठीक है. So this is what I've been doing for 2 years now. Yes. या कीप इट सिंपल. आपने कहा आप हर महीने 40 से 50 हजार रुपए सेव करते हो, तो फिर आपके टोटल सेविंग्स 2,20,000 कैसे है? जो मैं सोचता हूँ कि एवरी मंथ आई कैन गो फॉर 15,000, 20,000, 25,000, तो वो कॉन्जिक्यूटिवली मैं स्टेबल नहीं चल पा रहा हूँ. वो किसी महीने 15,000 चला गया, किसी महीने 5,000 ही रह गया. तो दैट्स नॉट स्टेबल. तो दिस इज द रीजन आई कांट गो फॉर द SIPs, आई कांट गो फॉर दोज रिकरिंग डिपॉजिट्स which I'm also given the option in stable money app which I started recently. So this is the reason I'm kind of lacking somewhere on the savings part. यही challenge है ना कि should I use some other strategy? The strategy is to delay your expenses. Delay your expenses. Okay. जैसे आपने बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस लेना था, Yes. तो आपने 38,000 रुपए कार्ड से स्वाइप कर दिया. Yes. राइट. वही 38,000 अगर आप बिजनेस क्लास में नहीं जाते, अगर आप इकोनॉमी में जाओगे, Right. तो आपका उतना खर्चा ही नहीं होगा, तो आपके सेविंग्स में जाएगी नहीं. राइट. Okay. आप 80,000 कमाते हो. Yes. ठीक है, आपके हाथ में 50,000 का वॉच है. Yes. राइट. आपके हाथ में नॉर्मल आईफोन नहीं है, आपके Yes. पास प्लस वाला आईफोन, Yes. जो आपकी 1 महीने की सैलरी से ज्यादा है. Correct. राइट. Correct. तो आप भले पैसे बचा के ये सारी चीजें खरीद रहे हो, Okay. फिर भी आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा ही खर्चा हो रहा है ना. Correct. That's precisely on point. Yes. So even if you are saving for these products, you are only able to save for these products because you don't have any fixed expenses. Okay. आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत ही कम है. अगर आप देखो, एक 3 लोगों की फैमिली का फिक्स्ड खर्चा 30 से 35,000 रुपए है ना. बाकी का आपका सारा डिस्क्रिशनरी खर्चा है. Okay. वो आप डिस्क्रिशनरी 2 महीने आप 40,000 हजार बचा भी लिया, और फिर अगर उसने आईफोन खरीद भी लिया आपने, Right. फिर भी दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन. Okay. Even though I purchase all of these things which you just mentioned on no cost EMIs. या स्टिल Okay. आप ये समझो ना कि आपका जो है फोन है 80,000 रुपए का होगा. Right. 80,000 का है, मतलब आपने अपने जिंदगी के 30 दिन की मेहनत Yes. इस पे लगा दी. Yes, that's correct. It is very clear that it is not affordable at this point. Okay. Again, to continue this part, so I'm planning to buy a MacBook for official and home purpose both. So it's around like 1.5, 1.6 lakh something. So I'm still unable to go for it. I thought I might start with a new year, January,
and I might start with a no cost EMI from the Apple store itself in Delhi that we have. So but I have kind of somehow postponed it, thinking ki this might not be a good decision. So I was thinking ki I should save this money, then go for a no cost EMI, even though I have the money. तो जो मेरा सैलरी का every month I'll get from January, February, the EMIs will be deducted from there. So this is what my strategy was. But I thought कि शायद ये काम कर जाएगा to increase my savings. So is this correct? आप पैसे बचा के खरीदो या नो कॉस्ट ईएमआई में खरीदो, द रियलिटी इज दैट एट दिस पॉइंट यू शुड नॉट स्पेंड 2 months ऑफ योर सैलरी ऑन अ लैपटॉप. ठीक है. आपके पास जैसे मैं देख सकता हूँ कि आपके पास एक लैपटॉप है. Yes. राइट. इस लैपटॉप से आपका काम चल रहा है अभी. Yes. I have 2 laptops at this point. So one is from the office and one is from the my personal laptop. Yeah. It's working for now for my usual coding, but it's not that good to go for a higher pitch. It's not a mandatory खर्चा कि मुझे लेना ही लेना है. I can still manage with these 2. Yeah. तो बिल्कुल भी नहीं है मैंडेटरी खर्चा. गाइस प्लीज लैपटॉप या किसी भी गैजेट में महीने 2 महीने सैलरी मत लगाओ, है ना. एप्पल वॉच में भी मत लगाओ अपने आधे महीने की सैलरी, 30 दिन की सैलरी. डज नॉट मेक एनी सेंस. आपका ये प्रॉब्लम है. आपको लग रहा है आपका प्रॉब्लम ये है कि आप पैसे बहुत ज्यादा सेव कर रहे हो. नहीं, दैट्स नॉट द इशू. ओके. यू नीड टू एनालाइज योर परचेजेस. ओके. तो ब्रो ये जो आपका जो है लोन का जो सिलसिला है ना, ये 3 साल बाद भी कंटिन्यू रहेगा अगर आपके एक्सपेंसेस ऐसे ही रहे तो. राइट. करेक्ट. एट दिस पॉइंट आपके जितने भी खर्चे हैं, यस, राइट, ये सारे खर्चे मिला के आपके 25 से 30 हजार रुपए हो रहे हैं. ओके. है ना. ओके. इन इलेक्ट्रिसिटी को हटा दो तो 25,000 रुपए 20,000 रुपए आपका टोटल खर्चा है एवरी मंथ. या एवरी मंथ. ओके. इलेक्ट्रिसिटी इज एन एडेड थिंग जो आगे जाके शायद कम भी होगा. ओके. ओके. इसके अलावा आपके पास 50,000 रुपए बचते हैं. Yes, estimatedly it should be around 45 to 50,000 every month for the saving part. Yes. बट वो नहीं हो पा रहा है. Correct. वो नहीं हो पा रहा है. मैं अगर आपके केस में होता, Yes. जो मैं रहा हूँ, आपने आप जो जिंदगी जी रहे हो वो जिंदगी मैंने कोविड के टाइम पे जी थी. Okay. मैं मम्मी पापा के साथ अहमदाबाद में रहता था. Okay. मेरा कोई रेंट नहीं था. राइट. ग्रोसरीज भी थैंकफुली पापा ही देख लेते थे, है ना. तो कुछ भी मेरा खर्चा नहीं था. राइट. तो मेरा ऐसा था कि अगर 2 तारीख या 3 तारीख को पेमेंट्स आने लग गई मेरे को, तो 5 तारीख को मेरा पैसा सीधा इन्वेस्ट हो जाता था. ओके. तो आपके केस में भी ये होना चाहिए कि आपका पैसा पहला इन्वेस्ट हो जाना चाहिए. ऑलराइट. 15-20 हजार रुपए हर महीने आप सीधा इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आपके खर्चे ऐसा कुछ है नहीं. यस. उसके बाद आप खर्चे देख लो बचे हुए अमाउंट्स. राइट. बचे हुए अमाउंट से. Yes, sounds good for now. एक और चीज, यहाँ पे आप लोग ने बाहर का खाना या फिर फूड ऑर्डर्स ये सब नहीं होता नहीं है, इतना ज्यादा नहीं होता है. ओके. इसके अलावा शॉपिंग is was a kind of a thing. Last year I went to last year I would say I went to Dubai with my wife. So shopping was done at that part. But what we have decided, me and my wife, instead of purchasing clothes now for a future vacation, we might go for it in the same month when you are planning for a vacation. So I have no plans for that. This is the reason why you are not able to save anything. Okay. You don't know where your money is going. आप बोल रहे हो कि आप शॉपिंग कभी कभी करते हो. Yes. आपके शीट में शॉपिंग लिखा नहीं है. ठीक है. आपने बोला कि आप खाना बहुत कम ऑर्डर करते हो, बट कभी तो करते होंगे मंथ में 1 बार 2 बार. Yes. कहीं नहीं लिखा है. Okay. ठीक है. बच्चा हुआ है. Yes. गिफ्टिंग वगैरह होती होगी. Yes. कहीं नहीं लिखा है. Okay. आपके जो बड़े बड़े रैंडम खर्चे हैं वो इस शीट में है ही नहीं. दैट इज द रीजन व्हाई यू आर ऑलवेज सरप्राइज्ड कि आपका पैसा क्यों नहीं सेव कर पा रहे हो, क्यों इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो. बट ये सारे खर्चे डाले बिना भी आपका जो एक्सपेंस था सितंबर का, वो है 80,888, which is more than your salary of 80,000. Yes, that's correct. Right. I must have had some expenses in that particular month, so which is why I kind of pre-planned it कि ये होना ही है वहाँ पर. तो this is the thing. ये जो शीट है ना अभी करंटली, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये करना चाहते हो. Yes. ये आइडियलिस्टिक शीट है. Yes. है ना. This is what I want to do. लिखा हुआ है 2026. Yes. Right. ऐसे नहीं होगा. आप मुझे ये बताओ कि 2025 में आपका
ओके क्यों सेविंग नहीं हो पा रहा था? इसलिए सेविंग नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो आप करना चाहते हो और जो Yes. हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, somewhat yes. तो आप अभी हो ये रहा है कि आपको करना है महीने का 15,000 सेव या 15,000 Correct. इन्वेस्ट। Correct. इससे कम अगर कुछ होता है तो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग ही नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपसे हर महीने 15,000 नहीं हो पा रहे हाँ, तो आप अमाउंट छोटा करो, बट हर महीने इतना मिनिमम तो होना ही चाहिए। सो मैंने जनवरी के लिए प्लान किया है कि 15,000 से मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, एंड आई एम काइंड ऑफ सेविंग दैट अमाउंट प्रायर फ्रॉम दिस ईयर्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इज दैट अ गुड आइडिया? क्या मैं इससे वो अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाओगे? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ऐसे कुछ खर्चे आ जाएंगे जिसमें फिर 15,000 रुपए आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जो आपका अभी तक चल रहा है, ओके, जो इतने टाइम से चल रहा है वही होगा आपका फिर भी आगे जाके, क्योंकि ये अमाउंट आपके लिए आज के दिन बड़ा है। okay, so you're saying the best would be to lower Reduce this the amount? fixed expense, reduce the fixed investment, Okay, keep it down to 5,000, 7,500। क्या अमाउंट आपके लिए कंफर्टेबल बताओ कि ये तो हर महीने डाल ही सकता हूँ। I would say 7 you gave ना, 7 to 8 is good. 7,000 आपका फिक्स्ड आरडी हो गया। Yes. ये जाएगा आपका 4th या 3rd को हर महीने फिक्स्ड, Okay. ठीक है? Got it. और उसके बाद 3rd वीक या 4th वीक में जब आपके सारे खर्चे हो जाएंगे, Yes. फिर आपके पास पैसे बचेंगे, वो आप Okay. एक्स्ट्रा हर महीने लमसम की तरह इन्वेस्ट सेव कर देना जब आपके पास बचेंगे। कारण आप एक परफेक्ट कस्टमर हो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि आपको चाहिए फिक्स्ड रिटर्न, सेफ रिटर्न्स, बिना रिस्क के रिटर्न्स, ठीक है? Yes. अगर आपको हमारे इस कॉन्वर्सेशन से सिर्फ एक टेक अवे लेना है तो ये बात होनी चाहिए, प्लीज आपके पास हजारों इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी जो Okay. आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेचेंगे, Yes. ये बोल के कि आपको बिना रिस्क के बहुत ज्यादा रिटर्न्स Yes. बनेगा। प्लीज किसी भी ऐसे प्लान में इन्वेस्ट मत करना, ठीक है? वो कितना भी ल्यूक्रेटिव हो, Even though coming from the bank side also. यस किसी के साइड से भी आए, चांसेस आर आपके रिश्तेदार या Okay. बैंक वाले ही आपके पास आएंगे। तो प्लीज ये तो एक चीज, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आप जो चाहते हो ना वो उनका सेल्स पिच है, Got it. बिना किसी रिस्क के Yes. रिटर्न, ठीक है? ठीक है. प्लीज उससे I'm the best victim for these. यू kind आर यू आर द परफेक्ट प्रोफाइल, of- ठीक है. ठीक है? ठीक प्लीज है. इनसे दूर रहो। Got it. ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस कॉन्वर्सेशन के बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। Yes. आपको अपने सारे खर्चे Yes. लिखने हैं, सारे being just the खाने two पीने सब parts. कुछ, ठीक है. Even सब though कुछ they are max to 15K annually, even though फिर भी लिखना है। ठीक है. इसके बाद थर्ड थिंग, जो भी आप सेव करोगे हाँ. वो महीने के स्टार्टिंग में करो। अभी आप इसलिए सेव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट है 15,000 Yes. जो आपसे हो नहीं पा रहा हर Yes. मंथ मैनेज, तो आप उस अमाउंट को 5 या 6,000 कर दो, ठीक है. पर वो फिक्स्ड रखो। जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसे अलग से इन्वेस्ट करना, बट फिक्स्ड अमाउंट एक सेव होना चाहिए। ठीक है. That's all I for think- today. Thank you so much, Karan, for inviting me to your house. I hope It's a अगले pleasure. 1 साल बाद Yes. आपकी ये सारी क्लैरिटी मिले और आपका Definitely. इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी रेगुलर हो जाए। Yes. Thank you so much for helping me out. आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें मोटिवेटेड रखता है। एंड इधर तक अगर वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो। योर लव एंड सपोर्ट कीप्स द एल्गोरिदम हैप्पी। गुड बाय एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।